بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 تغیر میں آج ہم مشقی سوالات 7.3 حل کرنے جا رہے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سے بیانات معکوس تغیر کے ہیں؟ پہلا ہے کہ مزدوروں کی تعداد اور ان کے کام کو پورا کرنے کے لیے لگنے والا وقت۔ یہاں پر دو چیز ہے، ایک مزدوروں کی تعداد ہے اور وقت ہے۔ تو یہاں پر اب جو مثال ہے اس کی ہم کو تحقیق کرنا ہے کہ اگر مزدوروں کی تعداد بڑھائی جائے گی تو وقت کم لگے گا یا زیادہ۔ دو مقداریں کون سی ہیں؟ ایک ہے مزدوروں کی تعداد اور دوسری مقدار ہے وقت۔ اگر مزدوروں کی تعداد بڑھتی ہے تو لگنے والا وقت کم ہوگا، یا اگر مزدوروں کی تعداد کم ہوگی تو جو وقت ہے وہ زیادہ لگے گا۔ تو یہ کون سی مثال ہوئی؟ معکوس تغیر۔ معکوس تغیر کی مثال ہے یہ۔ دوسرا ہے حوض بھرنے کے لیے ایک جیسے نلوں کی تعداد اور حوض بھرنے کے لیے درکار وقت۔ یہاں پہ بھی دو چیز ہے، ایک ہے نلوں کی تعداد اور دوسرا ہے درکار وقت۔ اگر ہم نلوں کی تعداد کو بڑھاتے ہیں تو حوض بھرنے کے لیے وقت کم لگے گا، اگر ہم نلوں کی تعداد کو کم کرتے ہیں تو حوض بھرنے کے لیے وقت زیادہ لگے گا۔ تو یہ کون سی مثال ہے؟ معکوس تغیر کی مثال ہے۔ معکوس تغیر کی مثال ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کا موازنہ ہے، سواری میں بھرا پیٹرول اور اس کی قیمت، یعنی پیٹرول اور قیمت۔ تو یہاں ہم اگر پیٹرول کو بڑھائیں گے، پیٹرول 1 لیٹر ہے 2 لیٹر ہے، اگر ہم پیٹرول بڑھاتے ہیں تو اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے، اگر ہم پیٹرول کم کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ معکوس تغیر کی مثال نہیں ہے۔ یہ مستقیم تغیر ہے، اگر معکوس نہیں ہے تو مستقیم ہوگا، لیکن یہاں پر ہم کو صرف بتانا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے بیانات معکوس تغیر کے ہیں، تو یہ معکوس تغیر کی مثال نہیں ہے۔ دائرے کا رقبہ اور دائرے کا نصف قطر، دو مقدار یہاں، ایک ہے دائرے کا رقبہ اور دوسرا ہے دائرے کا نصف قطر۔ تو دائرے کے رقبے کا ضابطہ کیا ہے؟ دائرے کا رقبہ برابر پائے آر کی قوت 2، یہ آر نصف قطر ہے، تو نصف قطر جیسے جیسے بڑھے گا دائرے کا رقبہ بڑھے گا، نصف قطر کم کریں گے تو دائرے کا رقبہ کم ہوگا۔ تو دائرے کا رقبہ، اگر دائرے کا نصف قطر بڑھتا ہے تو دائرے کا رقبہ بھی بڑھتا ہے، اور اگر دائرے کا نصف قطر کم ہوتا ہے تو دائرے کا رقبہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ معکوس تغیر کی مثال نہیں ہے۔ تو جو مثالیں دی جاتی ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے، اور پہچاننا اگر آ گیا تو آپ کو معکوس تغیر اور مستقیم تغیر کے سوالات حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ مشقی سیٹ 7.3 کا دوسرا سوال ہے، اگر 15 مزدور کو ایک دیوار تعمیر کرنے کے لیے 48 گھنٹے لگتے ہیں تو 30 گھنٹوں میں وہ کام پورا کرنے کے لیے کتنے مزدور لگیں گے؟
यहाँ पर भी एक है मजदूरों की तादाद और दूसरा है दरकार वक्त, कितना वक्त लगेगा। तो अगर मजदूरों की तादाद बढ़ाएंगे तो वक्त कम लगेगा, और अगर मजदूरों की तादाद कम होगी तो वक्त ज़्यादा लगेगा। यानी ये माकूस तगय्युर की मिसाल है। तो यहाँ पर जो दो मकदार है वो कौन सी है? मजदूरों की तादाद और वक्त। तो वक्त को काय में दिया हुआ है? घंटे में दिया हुआ है। मजदूरों की तादाद कितनी है? 15। तो वक्त कितना लग रहा है? 48। अब 30 घंटों में, यानी घंटों की तादाद यहाँ पर दिए, दरकार वक्त दिया है 30, और यहाँ पर हमको पता करना है कि मजदूरों की तादाद कितनी है। तो ये माकूस तगय्युर की मिसाल है। यहाँ पर हम मजदूरों की तादाद को x ले लेते हैं और वक्त को हम लेते हैं y। तो x y के साथ माकूस तनासुब में बदलता है। तो x बराबर k ज़रब 1/y। k बराबर y ऊपर आ गया x के साथ, x ज़रब y। तो ये जो है x ज़रब y बराबर k, यह है मसावात नंबर 1। अब पहली शर्त क्या है? 15 x है और 48 y है। 15 ज़रब 48 बराबर, आप ज़रब कर सकते हैं 15 को 48 से। अगर 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट 15 का पहाड़ा इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो फिर 5 8 40 का सिफर हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24, 1 8 8, 1 चौक 4, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। कितना आया? 720। साइड चेंज कर दीजिए, के बराबर आए 720। तगय्युर का मुस्तकिल है। अब दूसरी शर्त क्या है? अगर y 30 है तो x मालूम करना है। y बराबर 30 हो तो x बराबर कितना? फिर ये इक्वेशन a इम्प्लाई करेंगे। x ज़रब y बराबर k की कीमत कितनी आई? 720। पहले लिख लेते हैं x बराबर y बराबर k। अब x की कीमत मालूम करना है, y की कीमत है 30 और k की कीमत है 720। इसलिए x बराबर होगा 720/30। 0 से 0 कैंसल। 3 से 72 को तकसीम देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 बना, 3 चौक 12। तो x बराबर कितना है? 24। यानी हमको पता क्या चला कि तीस घंटों में वो काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? 24 मजदूर लगेंगे। ये आपका रफ वर्क है और ये पार्टीशन। मशक़ी सेट 7.3 का तीसरा सवाल है, मशीन के जरिए आधा लीटर की 120 थैलियों में 3 मिनट में दूध भरा जा सकता है, तो 1800 थैलियां भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? यहाँ पर देखिए, जो
कैपेसिटी है जो थैली की वो आधा लीटर की है। 120 थैली भरी गई 3 मिनट में। 1 मिनट में कितनी भरी गई होगी? 40 थैली। फिर 2 मिनट में 80 थैली। फिर 3 मिनट में 120 थैली। इसका मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है थैलियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर 120 थैली भरती है 3 मिनट लगता है, तो जैसे जैसे इसको कम करेंगे तो ये वक्त भी कम लगेगा। तो ये मुस्तकीम तगय्युर की मिसाल है। यहाँ पर दो मिकदारें कौन सी हैं? थैलियों की तादाद हम इसको ले लेते हैं x और दरकार वक्त ये है y। तो ये कौन सी मिसाल है? ये मुस्तकीम तगय्युर की। पहले यहाँ लिख लेते हैं 120 थैलियां जब थी तो वक्त कितना लगा? 3 मिनट। यहाँ वक्त काय में है? मिनट में। और जब 1800 थैलियां भरनी है तो वक्त कितना लगेगा? तो ये मुस्तकीम तगय्युर की मिसाल है। यानी x y के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है। x बराबर KY, इसलिए x बट्टे y बराबर k, या साइड चेंज करेंगे तो k बराबर x बट्टे y। यह है मसावात नंबर ए। अब यहाँ दिया हुआ है थैलियों की तादाद x कितनी है? पहले हम लिख लेते हैं x बट्टे y बराबर k। x कितना है? 120। तो y कितना है? 3। 3 एकम 3, 3 चौक 12। 40 बराबर k। तो k बराबर कितना आया? 40। अब दूसरी शर्त क्या है? x बराबर 1800। अगर x बराबर 1800 हो तो y बराबर मालूम करना है। मसावात लिखिए x बट्टे y बराबर k। इसको लीजिए मसावात नंबर ए। यहाँ पर भी मसावात नंबर ए जो है ये इम्प्लाई है। x की कीमत कितनी है? 1800। y की कितनी है मालूम करना है। और k कितना आया? 40। y तिरछी जरा में ऊपर गया, 1800 अपनी जगह, 40 नीचे आया। सिफर से सिफर कैंसिल, 180 बटे 4। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचा 20 बना, 4 पंजे 20। इसलिए y बराबर 45। 1800 थैलियां भरने के लिए 45 मिनट दरकार होगा। मश्की सेट 7/3 का चौथा सवाल है। एक कार को 60 किलोमीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से कुछ फासला तय करने के लिए 8 घंटे लगते हैं। वही फासला 7.5 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत रफ्तार में कितना इजाफा होगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे कार की रफ्तार बढ़ती जाएगी वक्त कम लगेगा। यानी अगर रफ्तार में इजाफा होता है तो वक्त कम लगता है, और अगर रफ्तार कम होती है तो वक्त ज़्यादा लगता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी दो मिकदार हैं। रफ्तार है, किस में दी हुई है, किलोमीटर फी घंटा, और वक्त जो है ये। रफ्तार को हम फर्ज कर लेते हैं ये x है और ये y है। 60 किलोमीटर की रफ्तार तय करने के लिए कितना वक्त लगा, 8 घंटे। तो 7.5 घंटे में कितना फासला तय करेगी, पहले हम ये निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे कि औसत इजाफा कितना करना होगा, जब 60 में कितना इजाफा करना पड़ेगा कि हम 7.5 घंटे में पहुंच जाए। तो पहले हम 7.5 घंटे में कितना फासला तय करती है वो देखेंगे। ये कौन सी मिसाल है, ये माकूस तगय्युर की मिसाल है। एक मिकदार बढ़ाने से दूसरी कम होती है और दूसरी एक मिकदार कम करने से दूसरी बढ़ती है। तो x और y के दरमियान में माकूस तगय्युर को इस तरह से लिखते हैं, x बराबर के ज़रब 1/y, x ज़रब y बराबर के। यह है मसावात नंबर ए। अब पहली शर्त में जो है वो है x 60 है तो y कितना है, 8। x बराबर 60 है, y बराबर 8। इक्वेशन ए देखेंगे, x ज़रब y बराबर के, 60 ज़रब 8 बराबर के। तो k बराबर 8 0 0, 8 छिक्के 48, इसलिए k बराबर कितना आया, 480। दूसरी शर्त क्या है, x मालूम करना है, y कितना है, 7.5। 7.5 2 सती 14 और 1 15, 15/2 हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन ए देखिए, x ज़रब y बराबर के, x मालूम करना है, y है 15/2 बराबर k है 480। x बराबर 480 ज़रब, ये 2 ऊपर जाएगा तिरछी ज़रब में, 15 नीचे आएगा। 15 से कैंसिल करें, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 बचा, 30 बना, 15 दूनी 30। तो x बराबर 32 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 7.5 घंटे में, अगर हम 7.5 घंटा हमारे पास में है और वक्त, तो उस वक्त उसकी रफ्तार कितनी होंगी, 64 किलोमीटर। पहले कितनी थी, 60, कितनी हुई 64। तो कितनी में रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, कितनी औसत रफ्तार में कितना इजाफा करना पड़ेगा। तो अब हम इजाफा मालूम करेंगे। ये क्या मालूम किए, 7.5 घंटे में चौसठ किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है। और पहले हम कौन सी रफ्तार से चल रहे थे, 60 किलोमीटर फी घंटा। हमको चलना है 64 किलोमीटर, तो बढ़ेगी कितनी, 4 किलोमीटर। तो रफ्तार में इजाफा -64 4, तो 7.5 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत रफ्तार में 4 किलोमीटर फी घंटे का इजाफा करना होगा।
یہ مشقی سیٹ 7.3 کے 4 سوالات، اور یہاں پر یہ سبق نمبر 7 تغیر، اس کی بھی پوری مشقی سوالات جو ہے وہ مکمل ہے۔